शुरू होगी। ओके, और इसको स्टॉप कैसे करना? जब क्लास एंड होगी। क्लास एंड पे नहीं करना, जब आपने क्वेश्चन आंसर करना है क्वेश्चन आंसर स्टॉप रिकॉर्डिंग है पॉज है? मोर में बस स्टॉप बेटा बताया तो है। वो ये होगा ना कि अब जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Are you all listening to me? Raise your hands if you are listening. Raise your hands, students. All right, as you know, yes, thank you very much. All right. Now, as you know that we were doing present indefinite tense and we have already done 3.5 exercises actually. And we were doing the interrogative sentences. That is exercise number 4. And we already had done 10 sentences of interrogative. And actually this is page 32 in your workbook of English P, English language, grammar and composition workbook. Abdullah Hasib bete, stop your video. All right. So let's start with sentence number 11, that is page number 32. Page 32 in your grammar composition workbook. क्या आप मिठाइयों पर फलों को तरजीह देते हैं? क्वेश्चन आंसर करें तो सिर्फ आप उसको तब तक जैसे भी जूम करेंगे ये डॉट का निशान आ जाएगा, और अगर आपने स्टूडेंट का आंसर दे दिया है उसके बाद, क्योंकि वो हिस्सा उसमें आएगा ही नहीं, कट ऑफ कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, मैं समझ। अब ये अनम्यूट हो गया है ना? All right. Students, are you listening to me? All of you? All right. Now, क्या आप मिठाइयों पर फलों को तरजीह देते हैं? मिठाइयों पर फलों को तरजीह देते हैं। तरजीह देना मतलब टू फाइंड समथिंग बेटर, यानी किसी चीज को ज्यादा बेहतर समझना, तरजीह देना होता है। ठीक है जी। मिठाइयों, स्वीट्स, फलों, फ्रूट ऑफ कोर्स। डू यू प्रेफर, तरजीह देना होता है प्रेफर, to feel that something is better than the other. Okay. Do you prefer fruit on sweets? Do you prefer fruit on sweets? Question mark. I told you yesterday that you are doing interrogative sentences, and interrogative sentence always ends in a question mark. So if there is no question mark in the end, that sentence is considered as incomplete. So make sure that you are putting a question mark in the end. All right. Sentence number 12. क्या लोग वक्त को अहम समझते हैं? क्या लोग वक्त को अहम समझते हैं?
do people consider, समझना, consider, do people consider time important? Do people consider time important? All right, number 13, ये तलबा वक्त क्यों जाया करते हैं? ये तलबा वक्त क्यों जाया करते हैं? तलबा स्टूडेंट जाया वेस्ट. Why? क्यों? Question word. What is the question word? क्यों? Why? Why do these students waste time? Why do these students waste time? Why is the question word. Do is the helping verb. These students subject. Waste verb. Time object. All right. Now, मुर्गा कब अजान देता है? कब? When? When does the cock crow? When does the cock crow? आजान देने को कहते हैं crow. ठीक है? All right. Now, number 15, क्या आपकी बेटी बड़ों का एहतराम करती है? क्या आपकी बेटी बड़ों का एहतराम करती है? Does your daughter, now you can see that your daughter, because the subject is singular, that is why हमने क्या pick किया है? Does pick किया है as a helping verb. Does your daughter respect her elders? Does your daughter respect her elders? Okay. Now, exercise number 5. Exercise number 5. क्या वो लोमड़ की कीमत मुनासिब तलब करता है? लोमड़ होता है विक्सन, VIXEN, विक्सन. विक्सन क्या होता है? लोमड़, यानी कि जो लोमड़ी होती, फॉक्स, उसका मैस्कुलाइन होता है. क्या वो लोमड़ की कीमत मुनासिब तलब करता है? डज ही डिमांड अ रीजनेबल प्राइस? मुनासिब कीमत, रीजनेबल प्राइस. Does he demand a reasonable price for the vixen? Does he demand a reasonable price for the vixen? Number 2, कपड़े का ताजिर कम नाप क्यों देता है? क्यों is the question word. Why? Why does the cloth merchant? अच्छा, अब ये कपड़े का ताजिर जो है उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है? क्लॉथ मर्चेंट. क्लॉथ कपड़ा, मर्चेंट ताजिर. Why does the cloth merchant measure short? अच्छा, अब measure short क्या होता है? कम नापना. It means that अगर फर्ज करें आप 2 मीटर कपड़ा लेना चाहते हैं और जो दुकानदार है वो आपके साथ चीटिंग करता है और वो आपको 2 मीटर के बजाय उससे थोड़ा कम दे देता है, तो वो क्या कर रहा है? ही इज मेजरिंग शॉर्ट, यानी कि शॉर्ट मेजर कर रहा है, कम मेजर कर रहा है. ठीक है जी. Why does the cloth merchant measure short? क्या तमाम तलबा डाक के टिकट जमा करते हैं? Do all students collect postage stamps? डाक के टिकट, पोस्टेज स्टैम्प्स. एक्चुअली स्टैम्प्स आमतौर पे हम खाली स्टैम्प्स बोलते हैं, डाक जो टिकट होते हैं, बट डाक के टिकट को हम पोस्टेज स्टैम्प बोले तो क्योंकि स्टैम्प्स तो और तरह की भी होती हैं, दैट्स व्हाई इट इज बेटर टू यूज द करेक्ट वर्ड, दैट इज पोस्टेज स्टैम्प्स, डाक के टिकट. ओके. नाउ नंबर 4, क्या अमीर आदमी दोनों हाथों से दौलत लुटाता है? Does the rich man burn the candle at both ends? Now if you remember, I told you कि जैसे आपने उर्दू में मुहावरे किए हैं. मुहावरे वो चीज होती है कि जिसके अंदर क्या होता है कि वर्ड्स तो कोई और यूज किए जाते हैं लेकिन उसके मीनिंग्स कुछ और होते हैं. सो व्हाट इज द पॉइंट एक्चुअली कि बात कुछ और अल्फाज में की जा रही होती है बट एक्चुअली द मीनिंग, द एक्चुअल मीनिंग इज डिफरेंट. तो उसी तरह से इंग्लिश में भी मुहावरे होते हैं, उनको इडियम्स कहा जाता है.
अब दोनों हाथों से दौलत लुटाना, इसको कहा जाता है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यानी दोनों तरफ कैंडल जलाना, फजूल खर्ची करना जिसको कहा जाता है। Does the rich man burn the candle at both ends? Number 5, तुम साइकिल खरीदने पर क्यों इसरार कर रहे हो? अच्छा बेटे, आप ये कर रहे नहीं है बल्कि ये है करते, इसको करेक्ट कर ले प्लीज। तुम साइकिल खरीदने पर क्यों इसरार करते हो? Why do you insist? इसरार करना, किसी बात पे जोर देना, किसी बात के लिए जिद करना। Why do you insist to buy a bicycle? Why do you insist to buy a bicycle? ठीक है जी। क्या ये लड़की रात को देर से सोती है? क्या ये लड़की रात को देर से सोती है? Does this girl sleep late at night? Does this girl sleep late at night? Number 7, परिंदे कब चहचहाते हैं? परिंदे कब is the question word when do the birds chirp? chirp क्या होता है? चहचहाना। जो परिंदों की आवाजें होती हैं उन्हें चहचहाना कहा जाता है, चिर्प कहा जाता है। नंबर 8 देखिए, उर्स पर लोग क्यों गाते और नाचते? उर्स क्या होता है? अगर आपने कभी देखा होगा, आपके घर के पास कोई मजार होता है या किस तरह, तो वहाँ जैसे मेले की टाइम टू टाइम इस तरह की होती है सेटिंग, उसको उर्स कहा जाता है। तो वो फेस्टिवल्स होते हैं। व्हाई डू पीपल सिंग एंड डांस ऑन फेस्टिवल्स? व्हाई डू पीपल sing and dance on festivals? Why do people sing and dance on festivals? Number 9, क्या वो किसी की परवाह नहीं करते हैं? Do they not care for anyone? क्या वो किसी की परवाह नहीं करते हैं? Do they not care for anyone? यानी कि क्या वो उनको किसी की परवाह नहीं है? डू दे नॉट केयर फॉर एनीवन। नंबर 10, आप किस किस्म के ख्वाब देखते हैं? किस किस्म के ख्वाब देखते हैं? व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स? आप किस किस्म के ख्वाब देखते हैं? व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स डू यू हैव? व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स डू यू हैव? तुम तर्जुमे की मशकें मुझे क्यों नहीं दिखाते हो? तर्जुमा होता है ट्रांसलेशन, मशकें एक्सरसाइजेस। नंबर 11, तुम तर्जुमे की मशकें मुझे क्यों नहीं दिखाते हो? Why do you not show me the translation exercises? तुम तर्जुमे की मशकें मुझे क्यों नहीं दिखाते हो? Why do you not show me the translation exercise? Number 12, क्या वो अपनी गलती मानता है? आई टोल्ड यू यस्टरडे कि गलती के लिए हम कभी भी एक्सेप्ट का वर्ड, मैंने बहुत लोगों को देखा है वो एक्सेप्ट का वर्ड यूज करते हैं, विच इज रॉन्ग। तो हमें उसके बजाय कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए? हमें उसके बजाय यूज करना चाहिए एडमिट। गलती मानना, एडमिट द मिस्टेक। ऑलराइट, क्या वो अपनी गलती मानता है? डज ही एडमिट हिज मिस्टेक? डज ही admit his mistake? Okay, number 13, क्या ये जमात अपने काम में दिलचस्पी लेती है? जमात इज द क्लास। ओके, क्या ये जमात अपने काम में दिलचस्पी लेती है? मीरब वसीम, बच्चे स्टॉप द वीडियो। डज दिस क्लास टेक इंटरेस्ट इन देयर वर्क? डज दिस क्लास टेक इंटरेस्ट इन देयर वर्क? क्या ये जमात अपने काम में दिलचस्पी लेती है? डज दिस क्लास टेक इंटरेस्ट इन देयर वर्क? नंबर 14, क्या पाकिस्तान में बारिश सिर्फ मौसम गर्मा में होती है?
क्या पाकिस्तान में बारिश सिर्फ मौसम गर्मा में होती है? डज इट रेन इन पाकिस्तान? डज इट रेन इन पाकिस्तान ओनली इन समर? डज इट रेन इन पाकिस्तान ओनली इन समर? नंबर 15 क्या है जी? पहाड़ों पर किस मौसम में बर्फबारी होती है? पहाड़ों पर किस मौसम में बर्फबारी होती है? इन विच सीजन? किस मौसम में? इन विच सीजन? डज इट स्नो? इन विच सीजन डज इट स्नो ऑन माउंटेन्स? इन विच सीजन does it snow on mountains? All right, students, that is all with present indefinite tense. There are 5 exercises in present indefinite tense. Now, if you have any question regarding present indefinite tense, you may ask, and then we will move to present continuous tense. All right, students, let's start with present continuous tense. Now, the point is that why do we call it continuous tense? Continuous means something which is still going on. कोई चीज जो अभी तक चल रही होती है उसे हम continuous कहते हैं. Now, present means मौजूदा जमाना, ये वाला जमाना. Anything. First of all, look at the sentences of present continuous tense. I have already uploaded a lecture of present continuous tense in the Google Classroom. So if you find any difficulty in the rules of present continuous tense, you may go to Google Classroom. The already uploaded lectures are there and you can open present continuous tense and revise it if you find any difficulty. Anyways, now how do we how do the sentences of present continuous tense look like? Look at the sentences now. पहला sentence क्या है? बूंदाबांदी हो रही है. देखें, how do we identify this sentences? कैसे identify उनको किया जाता है? उसका तरीका हमेशा ये होता है, like if in your exams you always have a list of sentences and all those sentences are all mixed up of different tenses. So the first step is always there. The first and the most important step is to identify the sentences correctly. अगर आपने उसको सही तरह identify नहीं किया तो आप उसको सही तरह translate करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता. So the first thing is that we have to identify it correctly. Okay. Now, a present continuous का sentence कैसे identify करना है? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ऑलवेज लुक एट द लास्ट 2 वर्ड्स ऑफ द उर्दू सेंटेंस. हमेशा उर्दू सेंटेंस के आखिरी 2 वर्ड्स आपको एक क्लू जरूर देंगे कि ये कौन से टेंस को बिलोंग कर रहा है. नाउ लुक एट दिस. द लास्ट वर्ड इज है. लास्ट वर्ड है. इस तरह के जो वर्ड्स होंगे दे शो प्रेजेंट टेंस. ऑब्वियसली है किस क्या शो करते हैं? प्रेजेंट टेंस. अच्छा जी, अब अगर सेंटेंस के एंड में रही है, रहा है, रहे हैं आ रहा होता है तो इट मीन्स दैट दीज आर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंसेस. अगर सेंटेंस के एंड में रही है, रहा है, रहे हैं आ रहा होता है तो हम इसका मतलब है ये कौन सा सेंटेंस है? इट इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंस. लुक एट द सेंटेंस स्ट्रक्चर नाउ. First of all, क्या लिखा जाएगा? Subject. What is the subject? A person who is doing the work is the subject. जो काम कर रहा होता है वो subject होता है. Then comes the helping verb. We have 3 options in case of helping verbs: is, are, am. So you have to be careful that according to the subject, आपके subject के लिहाज से you need to pick up the correct helping verb from here. Heather Ali, stop your video बेटे. So if the subject is singular, आपने लिखना है is. If the subject is plural, आपने लिखना है are. And in case of I, if the subject is I am, then we use am.
After that comes the verb. In case of present continuous tense, verb is used in the first form. But what is different in it, that क्योंकि अभी ये काम चल रहा होता है, it is still continued, so verb की first form के साथ हम लगाते हैं ing. Running, working, reading, writing, teaching, listening, speaking. ing इन तमाम words के साथ आता है. First form of verb plus ing in case of present continuous tense. And then comes the object. Object, I told you what is object. जिस पर काम किया जा रहा होता है उसे object कहते हैं. Let us start with the sentences. Now, even if after this, if you have any problem regarding the rules of present continuous tense, you can check the lecture in Google Classroom. Present continuous tense का lecture already वहाँ uploaded है. All right. बूंदाबांदी हो रही है. बूंदाबांदी हो रही है. It is drizzling. देखिए, बूंदाबांदी को कहा जाता है ड्रिजल, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास कंटिन्यूस टेंस है, आईएनजी हमने इसके साथ लगाना है, इसलिए हमारा सेंटेंस हो गया इट इज ड्रिजलिंग. नंबर 2, कुआं चल रहा है. अब कुआं चल रहा है मतलब चल के यहाँ से वहां नहीं जा रहा है, बल्कि क्या है कि कुएं में से पानी निकाला जा रहा है, उसको हम कहते हैं कुआं चल रहा है. कुआं के लिए वर्ड होता है पर्शियन व्हील. Persian wheel, those who have ever been to any village, they must have seen एक व्हील की तरह की चीज होती है, और उस व्हील की वो एक पूरा सेटअप होता है जिसकी मदद से पानी जो है वो वेल में से निकाला जाता है, कुएं में से. The Persian wheel is working. The Persian wheel is working. मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ. मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ. I am resting now. I am resting now. चूल्हे से धुआं उठ रहा है. चूल्हा होता है hearth, HEARTH, hearth. चूल्हे से धुआं उठ रहा है. Smoke is rising from hearth. Smoke is rising from hearth. Okay. हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं. We are collecting. You can see we plural, उसलिए हमने आर लगाया. Collect is the first form of verb. ing लगाया, collecting बन गया. We are collecting old coins. अगर आप चाहें तो पुराने सिक्के की जगह ancient coins भी लिख सकते हैं, old coins भी लिख सकते हैं. It is up to you. मुझे चक्कर आ रहे हैं. I am feeling dizzy. I am feeling dizzy. आप अपने दोस्त को अलविदा कह रहे हैं. अलविदा का मतलब है to say goodbye to someone. You are saying goodbye to your friend. You are saying goodbye to your friend. वो दरिया में गोता लगा रहा है. वो दरिया में गोता, गोता means diving. डाइव लगाना. वो दरिया में गोता लगा रहा है. He is diving in the river. He is diving in the river. Okay. इसके बाद क्या है? बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं. Children are making a lot of noise. Children are making a lot of noise. अकबर गंदुम काट रहा है. I told you कि फसल काटने के लिए हम कटिंग का वर्ड यूज नहीं करते, हार्वेस्टिंग का वर्ड यूज करते हैं. आपको कल ही मैंने ये वाली बात बताई है. अकबर गंदुम काट रहा है. अकबर इज हार्वेस्टिंग wheat. अकबर इज हार्वेस्टिंग wheat. औरत दूध उबाल रही है. The woman is boiling milk. The woman is boiling milk. तलबा स्कूल को सजा रहे हैं. तलबा स्टूडेंट्स स्कूल को सजा रहे हैं. Students are decorating the school. Students are decorating the school. वो मुझे मिलने आ रहा है. He is coming to meet me. मिलना, meet.
He is coming to meet me. All right. हुकूमत नए स्कूल खोल रही है. The government. Be careful about the spellings of government. The government is opening new schools. The government is opening new schools. पाकिस्तान दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है. अच्छा, अब ये दोबारा वही बात आई, दिन दोगुनी रात चौगुनी का मतलब क्या होता है कि बहुत ही तेजी से तरक्की कर रहा है. ठीक है, तरक्की करना प्रोग्रेसिंग, तरक्की होती है प्रोग्रेस, आईएनजी हमें लगाना है कंटिन्यूअस टेंस की वजह से. पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिंग by leaps and bounds. Now this by leaps and bounds is a phrase, एक phrase है. इसका मतलब क्या होता है? leaps होता है छलांग, bounds होता है रुकावटें, रास्ते. जैसे अगर कोई भी कोई रास्ता तय कर रहा है तो उसमें उसको रुकावटें भी आ सकती हैं, मसला भी हो सकता है. लेकिन पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत ही तेजी से तरक्की कर रहा है, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है. You can see there's a vocabulary box at the end of each exercise, and this box is given, you know, as we were having the regular classes in school. I never had done these translation sentences on board. You were supposed to do it yourself, but now as these are the online classes, so we have to do it in this way. Otherwise, you people, as you are class 7 students, senior students, you are supposed to do the translation yourself. And to help you, to give you a clue, there is a vocabulary box at the end of each exercise. And in case of the words that you may find difficult, you can check the vocabulary box and you can take the translation of that particular word from the box. All right. Follow the rules, follow the sentence structure, and you will not find it difficult. Okay.